are fine and doing your job in very well manner. So dear students, today we are going to discuss about our next topic, which is principle of mathematical induction. So earlier I have sent you the PDF form of this chapter, in which I have mentioned the formulae and algorithm how to solve the principle of mathematical inductions like questions. So today we are going to discuss some questions based on principle of mathematical induction. Okay, so first let me introduce you principle of mathematical induction. What is the meaning of it? Okay, so let us suppose Pn is any statement. Okay, Pn is any statement case first, let Pn is true. This statement is true for n is equal to 1. Second, this statement is true for n is equal to k, where k belongs to natural number, some natural number. Okay, then if Pn is also true for n equal to k plus 1, then we will say that Pn is true for all n belongs to natural number. This is the all about principle of mathematical induction. What it is, if we have given any statement Pn and we have given three conditions. First, if Pn is true for n is equal to 1, where n is any natural number, and the second case is if the statement is true for any integer value, any natural number k, then we say that this statement is also true for n is equal to k plus 1. If all three conditions are satisfied, then we can say that this statement is true for all natural number n. Okay, now we will discuss some questions. Okay, so from exercise 4.1, question number first. Prove the following by using the principle of mathematical induction for all n belongs to natural number. इन सारे क्वेश्चन में बेटा n जो है वो नेचुरल नंबर्स में बिलोंग कर रहा है. सो व्हाट इज द स्टेटमेंट? 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डैट डैश प्लस 3 to the power n minus 1 equal to 3 to the power n minus 1 divided by 2. So we have to prove it with the help of principle of mathematical induction. So let this is a statement Pn. Okay, 1 + 3 + 3 square plus data dash plus 3 to the power n minus 1. Okay, now case first. What is case first? Case first for n equal to 1. तो n इज इक्वल टू 1 के लिए हम देखेंगे ये जो गिवन स्टेटमेंट है क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है. सो फॉर n इज इक्वल टू 1 वी टेक फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड. सो फॉर n इज इक्वल टू 1 का मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा बच्चे? लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या करना है? n इज इक्वल टू 1 का मतलब आपको फर्स्ट टर्म लेना है. कौन सा टर्म लेना है? फर्स्ट टर्म. सो हियर व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? द फर्स्ट टर्म इज 1. ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड में फॉर n इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ? वी हैव टू टेक द फर्स्ट एलिमेंट and the value of first element is 1. Now what is the value of right hand side? Put n is equal to 1. So n is equal to 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा? 3 to the power 1 minus 1 divided by 2, which is 3 minus 1 divided by 2, which is 2 upon 2. After cancel out, right hand side also gives us 1. So left hand side 1, right hand side 1. So we can say that for n is equal to 1, this statement Pn is true. Okay, now case second. For n equal to k.
सो फॉर n इज इक्वल टू के वी लेट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। n इज इक्वल टू के लिए हम मान लेते हैं कि स्टेटमेंट जो है ये क्या है, ट्रू है। सो n इज इक्वल टू के लिए स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 + 3 स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, जहाँ जहाँ n है उसको रिप्लेस कर देंगे किससे, रिप्लेसिंग n बाई के। सो प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा, 3 टू द पावर k माइनस 1 डिवाइड बाई 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फॉर n इज इक्वल टू के वी सपोज दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो n को k से रिप्लेस करके ये कंडीशन आ गई। अब नाउ वी हैव टू प्रूव केस थर्ड फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। सो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमें क्या करना है बच्चे, इसको प्रूव करना है। सो ठीक है, n की जगह पे, ठीक है, n को किससे रिप्लेस कर देंगे हम, k प्लस 1 से। सो आपका जो स्टेटमेंट है वो कन्वर्ट हो जाएगा 1 + 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 3 टू द पावर k, ओके, 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर, अब k को रिप्लेस कर देंगे किससे, k प्लस 1 से, तो क्या मिल जाएगा, k प्लस 1 माइनस 1 एंड राइट हैंड साइड में n की जगह k प्लस 1 रखेंगे। सो 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ओके, सो स्टेटमेंट क्या बना, 1 + 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर प्लस 1 माइनस 1 गॉट कैंसिल आउट, तो 3 टू द पावर k इक्वल टू 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1/2। सो ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसका, 1 + 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1 एंड प्लस 3 टू द पावर k। डियर स्टूडेंट, यहाँ तक की वैल्यू देखिए आप, 1 + 3 स्क्वायर टिल 3 टू द पावर k माइनस 1, इसकी वैल्यू जो है 3 टू द पावर k माइनस 1/2 है फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो हियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ तक की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 टू द पावर k माइनस 1/2, ओके, प्लस 3 टू द पावर k। नाउ टेकिंग एलसीएम, कितना आ जाएगा एलसीएम, 2 आ जाएगा। सो दिस इज 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में, तो 2 टाइम 3 टू द पावर k। ओके, दिस इज ओनली कैलकुलेशन, नथिंग एल्स। सो 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 2 टाइम 3 टू द पावर k डिवाइड बाई 2। So 3 to the power k and 2 times 3 to the power k, after adding it will give us 3 times 3 to the power k and minus 1 divided by 2. So अगर बेस इक्वल हो बेटा तो क्या होता है, अगर बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो इसकी पावर 1 है तो कितना हो जाएगा, 3 to the power k plus 1 minus 1/2 विच इज़ अवर राइट हैंड साइड। चेक कर लीजिए, राइट हैंड साइड यही था। तो अब हम कह सकते हैं यहाँ पे, सिंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 ऑन बिहाफ ऑफ, किसकी हेल्प से हो रहा है ये, फॉर n इज इक्वल टू k। n इक्वल टू k के लिए हमारे पास जो इक्वेशन थी इसकी हेल्प से हमने प्रूव कर दिया कि जो स्टेटमेंट है n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ओके, क्योंकि आपने 3 कंडीशन में इसको क्या दिखा दिया है कि 3 कंडीशन में ये जो स्टेटमेंट है ये सेटिस्फाई हो रहा है, दैट्स वाई अब ये सभी नेचुरल नंबर के लिए, फॉर ऑल नेचुरल नंबर दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू। सो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। Okay, now question number 2. 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus dash 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 plus n cube equal to 1/2 टाइम n plus 1 होल स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट केस फर्स्ट क्या होगा बच्चे, केस फर्स्ट बेटा फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 के लिए फिर वही बात, n इज इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड कितना होगा, फर्स्ट n इज इक्वल टू 1 का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 क्यूब, तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में 1/2 टाइम n की जगह 1 रख देंगे वैल्यू यहाँ पे ना, n की जगह 1 रखेंगे, सो 1/2 टाइम इंटू 1 इंटू कितना
1 + 1 ओके होल ऑफ स्क्वायर. सो कितना आ जाएगा ये 1/2 टाइम इंटू 1 + 1 2 2 1 जा 2 होल स्क्वायर. सो 2 से 2 कैंसिल 1 टाइम दैट इज 1 का स्क्वायर दैट इज 1. सो फॉर n इज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो लिख देंगे एक लाइन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n is equal to 1. Okay, now second case for n is equal to k, let the statement is true. For n is equal to k we suppose that this statement is true. तो हम करेंगे क्या, n को रिप्लेस कर देंगे बेटा किससे, k से पूरी स्टेटमेंट में. तो क्या बन जाएगा स्टेटमेंट 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डैश 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 प्लस के क्यूब इक्वल टू 1/2 टाइम के प्लस 1 ओके होल ऑफ स्क्वायर. ठीक है. नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ये हम लेट कर लेते हैं n बराबर k के लिए हमें प्रूव नहीं करना होता. वी सपोज दैट फॉर n इज इक्वल टू k दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. तो हम करते क्या है n को रिप्लेस कर देते हैं स्टेटमेंट में लेफ्ट एंड राइट साइड k से. क्लियर हो गया. तो इक्वेशन फर्स्ट मिल गई. नाउ केस थर्ड फॉर n इक्वल टू k प्लस 1. अब n इक्वल टू k प्लस 1 में क्या करेंगे, लेफ्ट एंड राइट साइड में जहाँ जहाँ पे n है उसको रिप्लेस कर देंगे किससे, k प्लस 1 से. तो आपकी कंडीशन स्टेटमेंट की क्या बन जाएगी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डैश डैश डैश. ये क्या हो जाएगा k क्यूब प्लस नेक्स्ट एलिमेंट k प्लस 1 तक जा रहा है सीरीज k प्लस 1 क्यूब ओके. और राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा बेटा 1/2 टाइम n विल रिप्लेस विथ k प्लस 1. सो k प्लस 1 एंड k प्लस 1 और यहाँ पे k प्लस 1 रखेंगे तो k प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा k प्लस 2 ओके. एंड दिस इज होल ऑफ स्क्वायर. सो हमें क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल कर देना है ताकि हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाए ट्रू हो जाए फॉर ऑल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. सो लेफ्ट हैंड साइड उठाइए 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डैश डैश प्लस k क्यूब प्लस k प्लस 1 होल क्यूब. सो 1 क्यूब से लेके k क्यूब की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू कितनी है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डैश डैश प्लस k क्यूब इक्वल टू 1/2 टाइम k प्लस 1 होल ऑफ स्क्वायर. सो हम इसकी वैल्यू यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इसको यहाँ पे. तो हमें क्या मिल जाएगा इसकी जगह 1/2 टाइम k प्लस 1 होल ऑफ स्क्वायर प्लस k प्लस 1 होल क्यूब ओके. अब यहाँ पे देखिए बेटा k प्लस 1 पहले होल स्क्वायर यहाँ खोलेंगे तो दिस इज़ 1/4 दिस इज़ k स्क्वायर एंड दिस इज़ k प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1 होल क्यूब. सो व्हाट इज़ द कॉमन फैक्टर इन बोथ द टर्म k प्लस 1 होल स्क्वायर दिस इज़ कॉमन. सो टेकिंग इट आउटसाइड द ब्रैकेट तो यहाँ क्या मिलेगा k स्क्वायर अपॉन 4 प्लस k प्लस 1. नाउ ऑन सिंप्लीफाइंग इट we get k plus 1 whole square k square plus 4 time k plus 1 divided by 4 okay. So 1/4 k plus 1 whole square into k square plus 4k plus 4 okay. So कितना हो जाएगा बेटा ये 1/4 टाइम k plus 1 whole square और ये किसका है k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 ये बेटा k प्लस 2 का होल स्क्वायर. सो ऑन कंबाइनिंग ऑल 3 एलिमेंट्स हम क्या लिख सकते हैं इसको 1/2 टाइम k प्लस 1 k प्लस 2 होल ऑफ स्क्वायर ओके. एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड. यही हमें प्रूव करना था. ध्यान से देखिए ना 1/2 टाइम k प्लस 1 k प्लस 2 होल ऑफ स्क्वायर. ठीक है. फॉर कंडीशन फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया और राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर लिया. सो हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 एज वेल एज फॉर n इज इक्वल टू k ओके. एंड वी हैव टू शो दैट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. हैंस by PMI means by principle of mathematical induction this statement will be true for all set of natural numbers. Now pause the video and take the screenshot.
Now dear student, proceed to next question number 3. Question number 3. The given statement is 1 plus 1 upon 1 plus 2 plus 1 upon 1 plus 2 plus 3 plus that is 1 upon 1 plus 2 plus 3 plus that is plus n and this is equal to कितना दिया है हमें, कितना प्रूव करना है, 2n अपॉन n प्लस 1. ओके, 2n अपॉन n प्लस 1. ठीक है. सो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं कुछ फार्मूले आपको बता देता हूँ. ठीक है बेटा, उन्हें आपने लर्न करना है. 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डेट एस प्लस n. ओके, दिस इज नोन एज सिग्मा n. ठीक है, और सिग्मा n का मतलब इसी को हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स. नेचुरल सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स. ओके, सम ऑफ n नेचुरल नंबर. सो इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टाइम n प्लस 1. दिस इज फर्स्ट. सेकेंड, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डेट एस प्लस n स्क्वायर. दिस इज सिग्मा n स्क्वायर. और क्या पढ़ेंगे इसको, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स. और क्या फार्मूला होता है बेटा इसका, सिग्मा n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 n प्लस 1 टू n प्लस 1. ओके, 1 अपॉन 6 टाइम 1 अपॉन 6 टाइम n प्लस 1 टू n प्लस 1. नाउ थर्ड वन, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डेट एस प्लस n क्यूब. दिस इज सिग्मा n क्यूब. और फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा इसका, 1 अपॉन 2 टाइम n प्लस 1 होल ऑफ स्क्वायर. अभी प्रूव किया था इससे पहले. ठीक है, तो ये 3 फार्मूले आपके दिमाग में बेटा होने चाहिए. जब ये 3 फार्मूले आपको लर्न होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे. ठीक है, इसमें थोड़ा सा प्रूव कर लीजिएगा. सिग्मा n स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन 6 टाइम n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1. ओके, n प्लस 1 टू n प्लस 1. तो ये 3 फार्मूले आपको क्या करना है बेटा, लर्न करना है. ठीक है, ये 3 फार्मूले PMI के क्वेश्चंस को करते समय आपको हेल्प करेंगे. नाउ प्रोसीडिंग टू अवर क्वेश्चन. ठीक, तो क्वेश्चन में पहले केस फर्स्ट फॉर n इज इक्वल टू 1. तो n इज इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट एलिमेंट कितना है आपका, 1. चलिए राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे बेटा, n को रिप्लेस कर देंगे किससे, 1 से. तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1, दैट इज 2 अपॉन 2 एंड दैट इज 1. ओके, सो लिख देंगे यहाँ पे फॉर n इज इक्वल टू 1 द स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, सेकेंड, फॉर n इज इक्वल टू k. n इज इक्वल टू k के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है. सो लेट फॉर n इज इक्वल टू k द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. तो ट्रू है तो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे n है हम रिप्लेस कर देंगे उसको किससे, k से. तो सीरीज जो स्टेटमेंट है वो क्या बनेगा, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डेट एस प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस डेट एस प्लस k इक्वल टू ट्वाइस k अपॉन k प्लस 1. ओके, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ केस थर्ड, फॉर n इक्वल टू k प्लस 1. सो n इक्वल टू k प्लस 1, n को k को किससे रिप्लेस कर देंगे, k प्लस 1 से. तो सीरीज क्या बनेगी आपकी यहाँ पे, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड प्लस डेट एस प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3. कहाँ तक जाएगी बेटा सीरीज, k प्लस 1 टर्म तक. ठीक है, k प्लस 1 टर्म तक ये जाएगी.
लेकिन इससे पहले k प्लस 1 टर्म से पहले एक सीरीज जो जाएगी वो k तक वाली होगी, तो उसको इससे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। 1/1 प्लस 2 प्लस डैश डैश प्लस k तक, ठीक है। और ये बराबर कितना हो जाएगा, 2 टाइम k को रिप्लेस करना है किससे, k प्लस 1 से, अपॉन नीचे यहाँ पे कितना है, k प्लस 1। सो k को रिप्लेस करेंगे k प्लस 1 से तो कितना हो जाएगा, k प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। k प्लस 1 कितना हो जाएगा, k प्लस 2। सो नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हमें कितना दिखाना है, 2 टाइम k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2। सो लेफ्ट हैंड साइड बेटा हमारे पास कितना है, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस डैश डैश प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस डैश डैश प्लस k एन प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस डैश डैश प्लस k प्लस 1, ठीक है। सो यहाँ तक की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास कितनी दी है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ तक की वैल्यू हमारे पास है 2k अपॉन k प्लस 1। सो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू फ्रॉम 1, तो लिख देंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इतनी वैल्यू क्या आ जाएगी, इतने की जगह पे 2k अपॉन k प्लस 1, ओके। और प्लस 1 अपॉन जो बचा हुआ टर्म है उसको लिख लेंगे यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश प्लस k प्लस 1, ओके। सो दिस इज 2k अपॉन k प्लस 1 प्लस 1 अपॉन, अभी देखिए सम ऑफ नेचुरल नंबर्स है 1 प्लस 2 प्लस 3, कहाँ तक के नेचुरल नंबर्स का सम है, k प्लस 1, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, सिग्मा k प्लस 1, ओके। अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया, सिग्मा n सम ऑफ n नेचुरल नंबर, क्या बताया, 1/2 टाइम n प्लस 1, ओके। तो सिमिलरली सिग्मा k प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1/2 टाइम k प्लस 1, एंड यहाँ पे k प्लस 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, k प्लस 2, ओके, k प्लस 2, ठीक। तो ये वैल्यू यहाँ पे सिग्मा k प्लस 1 की जगह ये बिठा के रख लेंगे यहाँ पे, तो कितना मिल जाएगा ये, ट्वाइस k अपॉन k प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1/2 टाइम k प्लस 1 एंड k प्लस 2। अब कुछ नहीं करना बेटा, इसको क्या कर लेना है, इनको सॉल्व करोगे। सो 2 कहाँ चला जाएगा बेटा, 2 चला जाएगा न्यूमरेटर में, सो हो जाएगा 2k अपॉन k प्लस 1 प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 प्लस k प्लस 2। नाउ व्हाट इज द कॉमन पार्ट इन बोथ द टर्म, 2 अपॉन k प्लस 1 यहाँ भी है और 2 अपॉन k प्लस 1 यहाँ भी है। सो कॉमन पार्ट कॉमन ले लेंगे बेटा, ठीक है। तो कॉमन कितना आ रहा है, 2 अपॉन k प्लस 1। सो 2 अपॉन k प्लस 1 कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा यहाँ पे k, प्लस सेकेंड टर्म में क्या बचेगा, 1 अपॉन k प्लस 2, 1 अपॉन k प्लस 2, ओके। तो सॉल्व करें इसे, 2 अपॉन k प्लस 1 एक ब्रैकेट में, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई होगा ऊपर तो कितना देगा, ये k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 होल अपॉन में कितना, k प्लस 2, ओके। सो सॉल्व करेंगे इसे, सो 2 अपॉन k प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, दिस इज k प्लस 1 होल स्क्वायर, है ना, k प्लस 1 का होल स्क्वायर खोलिए, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k और नीचे k प्लस 2, k प्लस 2। सो एक पावर बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएगी, तो कितना मिल जाएगा, 2 टाइम k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2। यही हमारा क्या था बेटा, यही हमारा राइट हैंड साइड था, देखिए, ठीक है। जो हमें प्रूव करना था वो हमको मिल गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ओके। क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिखा दिया है कि जो स्टेटमेंट है फॉर n इक्वल टू 1 इट इज़ ट्रू, फॉर n इक्वल टू k वी सपोज दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, एंड फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 वी प्रूव्ड इट बाय द हेल्प ऑफ द स्टेटमेंट गिवन फॉर n इक्वल टू k। सो इसका प्रोसीजर जो है, इसका जो एल्गोरिथम है वो यही है, जो भी स्टेटमेंट आपको दिया है उसको पहले n इक्वल टू 1 के लिए आप प्रूव करें। सेकेंड स्टेप, फॉर n इक्वल टू k, ठीक है, n इक्वल टू k के लिए आप लेट कर लें, सपोज कर लें कि जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, ठीक है। n इक्वल टू k का मतलब n को आपने रिप्लेस करना है किससे, k से, वेयर k इज सम नेचुरल नंबर। सो जहाँ पे n था हमने रिप्लेस कर दिया k से, और जो इक्वेशन आई इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। फिर थर्ड स्टेप है फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, जहाँ पे n है n को रिप्लेस करेंगे किससे, k प्लस 1 से, तो आपकी सीरीज जो k तक जा रही थी वो k प्लस 1 तक एक बढ़ जाएगी, ठीक है। और राइट हैंड साइड में जहाँ k है वहाँ पे k प्लस 1 आ जाएगा।
तो इस स्टेटमेंट को आपने अब प्रूव कर देना है। फॉर n इक्वल टू k प्लस वन द लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो k प्लस वन के लिए अगर आपने प्रूव कर दिया तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉर सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो if the video is if you like the video then you subscribe it, share and like it, okay? And the homework from you is, तुम्हारे लिए जो homework होगा I'm giving here some questions. This is homework for you, okay? Question number first, 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4, 2 into 3 into 4 plus that is plus n into n plus 1 into n plus 2 equal to n plus 1 n plus 2 n plus 1 n plus 2 and n plus 3 divided by 4, okay? By the help of PMI आपको ये प्रूव करना है। This is question number first. One more question. 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus dash 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 plus n into n plus 1 equal to, प्रूव करना है आपको, n plus 1 n plus 2 n plus 1 n plus 2 divided by 3. So these two questions are homework for you, okay? आपको ये दोनों क्वेश्चंस होमवर्क के रूप में करने हैं और कल शाम को 5 बजे के बाद मैं सबकी कॉपियाँ जो है चेक करूँगा, ठीक है? व्हाट्सएप के थ्रू आप मेरे को सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।